विलियम शेक्सपियर, अ स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, किसने कहा है? राजीव वर्मा ने लिखा है, सॉरी कहा नहीं है, राजीव लिखा। वर्मा। हाँ जी, लिखा है, ये बुक है, ठीक है, शेक्सपियर से रिलेटेड। Whose book is Shakespeare Through Stern Eyes, लंदन 1932। ये किसकी रंजीत किताब? जी बहुत रणजीत जी अच्छे, कसानी। हाँ, रणजीत जी शाहनी का। शाहनी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हु एडिटेड शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये कौन बोलता है, कौन लिखता है, कौन एडिट करता है? सीडी नरसिम्हा। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। Whose book is Gender Race Renaissance Drama, किसकी किताब है ये? आनिया लुम्बा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Who edited Shakespeare in Indian language in languages published from Indian Institute of Advanced Study शिमला in 1999, ये कौन लिखता है? D.A. शंकर। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Whenever I am asked who is the playwright who has influenced you the most, I say Shakespeare. Whose remark is this? किसका remark है ये? ये गिरीश कर्नाड का। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, whose book is Shakespeare Translations in 19th Century Bengali Theatre published from Bangla Academy, ढाका in 1995, क्या हो जाएगा? नाजमुल हसन। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्लेज एस्पेक्ट्स ऑफ शेक्सपियर इन ट्रेजेडी, हैमलेट, वंस मोर, शेक्सपियर इन कॉमेडी, a Shakespeare manual are some of the significant publications of an Indian Shakespearean critic who was praised by Proof, Erwin Dabneron and Alardis Nicoli। किसने कहा है? ये क्या हो जाएगा? चंद्र सेन गुप्ता। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस वर्क शेक्सपियर हिज वर्ल्ड एंड, किसकी किताब है? KRS एंगर। ऑप्शन हाँ जी, KRS एंगर, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Who wrote Introduction to Shakespeare published from Karnataka Published House Bombay, क्या हो जाएगा? KG पंडित। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, Who wrote Shakespeare Criticism and Essay in Synthesis, क्या हो जाएगा? C नारायण मेनन। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Whose book is Shakespeare Latanis, किसकी किताब है ये? R.W. देसाई। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। He wrote essays on Shakespeare and tragedy. In this book, he wrote a long preface, Bhumika in Hindi. The first chapter of this book is tragedy. The four great tragedies, Hamlet, King Lear, Othello, and Macbeth, are separately discussed. The other chapters are Shakespeare and tragedy. किसी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, प्लीज मेंटेन योर माइक, ओके। Yes, tragedy, problems and other tragedies appendix is about Marlowe and just wait. Okay, Marlowe and Machiavelli Nismek. While Appendix B is about Tempest, a postscript to King Lear. He is an Indian Shakespearean critic. Who is he? किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन Ram Vilas Sharma. Option she should be correct. Now, yes, very nice. Now, question number 14. Sri Aurobindo and Taraknath Sen, S. Nagarjun, K.D. Sorry, just wait, please. Okay. K.D. Setna, Minsa Amalkiran, Ramvilas Sharma, V.Y. Kantak, Krishnan Nair, C.D. Narasimha, S.N.H. Jaffrey, A.A. Ansari, and Vasak Raj Nekar, S. Viswanathan, Sukanta Chaudhary, Bhim S. Dahiya, Vikram Chopra are some significant names of the Indian critics who worked on. कौन है ये? किसके? विलियम शेक्सपियर के ऊपर इन सब लोगों ने
क्या हो जी, बहुत अच्छे, उन्होंने काम किया हुआ है। आगे देख लेते हैं। शेक्सपियर बिकम अ शेयर होल्डर इन द 2 ऑफ द लीडिंग थिएटर्स। 2 थिएटर कौन-कौन से थे? ग्लोब थिएटर, प्लेयर्स। बहुत अच्छे। Julius Caesar, Antony, Cleopatra, Coriolanus are the plays that have the historical element, but the scholars do not place them in a category of history. They are known as, किस नाम से जाना जाता है? Roman plays. बहुत अच्छे. Okay. Who is the royal criminal weak in a criminality? तो हेनरी सिक्स्थ को बोला जाता है. बहुत अच्छे. Who is the royal saint weak in मैम his? एक मिनट इसे दोबारा से देखना क्वेश्चन को. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17. जी, हु वाला 17 ये वाला. 17. हाँ बताएं, क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? जॉन लग रहा है, जॉन देखने पर. अच्छा जस्ट वेट, हम इसको चेक कर लेते हैं. आज 4:30 वाले सेशन में नहीं थे क्या? थे सर, थे. सही है, बढ़िया. बी ऑप्शन दिया है बुक में. बुक में बी ऑप्शन दिया है जॉन दिया सर बुक में. नहीं, जस्ट वेट, हम इसको चेक ही कर लेते हैं. जॉन दिया है. एक मिनट. जी सर. हम अभी लाइव चेक कर ले रहे हैं. हालांकि देखिए, आपको हम बता दें, जो जॉन है, रिचर्ड सेकेंड है और हेनरी सिक्स्थ है, ये सभी वीकनेस के रूप में ही जाने जाते हैं. ठीक है, फिर से देख लीजिए. ये किंग जो हेनरी सिक्स्थ है, ठीक है, और किंग जॉन है, यहाँ पे किंग जॉन, ठीक है, और रिचर्ड सेकेंड, ठीक है. एक मिनट. रिचर्ड सेकेंड, ये तीनों लोग जाने जाते हैं वीकनेस के लिए. समझ रहे हैं? जी जी. हाँ जी, तो इस तीनों को याद रखिएगा. और स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन जाना जाता है? हेनरी फोर्थ जाने जाते हैं, हेनरी फिफ्थ जाने जाते हैं और रिचर्ड थर्ड जाने जाते हैं. इसको भी दिमाग में रखिएगा. ओके, तो इसमें दोनों सही होगा, किसी एक के साथ नहीं सही है. ये तीनों को भी हम आपको बताते चल रहे हैं, ये तीनों चीज दिमाग में कल रखिएगा. हम लोगों ने हेनरी सिक्स कल के टेट्रोलॉजी में पढ़ा था ना हम लोगों ने. यस सर. सर अरोरा ने इसका ऑप्शन बी माना है, जॉन माना है अरोरा ने इसका आंसर. बता रहे हैं. लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं हेनरी उसको भी सिक्स ध्यान रखिएगा. हेनरी सिक्स जो है रॉयल सेंट, क्या है इसमें माना गया? क्या हेनरी सिक्स्थ ही माना गया है सर? नहीं, रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी बोल रहा गया ना. हाँ, अब हाँ, उसमें जो जी. है जो जॉन माना गया होगा, नहीं होना तो यही चाहिए भाई, सिक्स ही होना चाहिए. सिक्स ही है इसका. रॉयल सेंट ही माना जाता है और वीक इन क्रिमिनलिटी यही है. हो सकता बुक लेकिन में अपने हिसाब से दिया हो. हाँ, ये वीकनेस के लिए जो इंग्लिश किंग थे, इन तीन लोगों को कमजोर माना गया है इंग्लिश हिस्ट्री में, जो शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है, जिसमें से किंग जॉन है, रिचर्ड सेकेंड है और हेनरी सिक्स्थ हैं. ये तीनों लोग कमजोर में ही माने जाते हैं. ठीक है, करेक्ट है, आप सही बता रहे हैं. हाँ जी, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ में कौन कौन है, जैसा कि हम आपको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं, हेनरी फोर्थ है, हेनरी फिफ्थ है और रिचर्ड थर्ड है. ये स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हु इज द रॉयल सेंट विक इन हिज सेंट लाइनस. मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेनरी सिक्स्थ. इसको थोड़ा सा हम और देख करके एक आप चीज लोग ये को अच्छे बताइए, ये जो क्वेश्चन है हु इज रॉयल सेंट, आप कौन बता रहे हैं कि जॉन माना गया है बुक में? 17 को बोल रहे हैं सर, 17 को. 17 हु इज द रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी. ब्रीक इन क्रिमिनलिटी. बुक में जो है जॉन माना गया है, बट जो है ब्री जो है सेंट, यही सिक्स ही माने जाते हैं. कोई बात इसको नहीं, थोड़ा इसको और फिर ऑथेंटिकेट हाँ, करना हम लोग पड़ेगा. ठीक है, और हम लोग देख करके इसको हाँ क्लियर कर देख लेंगे. लेते बता. चलिए ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 19 में क्या है, हु इज अ रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम. स्ट्रॉन्ग के लिए कौन जाना जाएगा? रिचर्ड थर्ड जाने जाएंगे. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। हु सेड, कौन कहता है ये? तो एडवर्ड डाउडेन। यस, इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। ध्यान रखिएगा, इन कवर की है। नेक्स्ट आता है, नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी कैन वॉश द बम ऑफ फ्रॉम एन anointed king, the breath of worldly men cannot depose the deputy elected by the Lord. Where do these lines appear? कहाँ पर लाइन देखने को मिलता है? थर्ड सीन 2। बहुत अच्छे, रिचर्ड सेकेंड सीन थर्ड, सॉरी एक्ट 3 सीन थर्ड में। नेक्स्ट आता है, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये सारे क्या हैं इनके? मैच्योर सारे कॉमेडीज। मैच्योर कॉमेडी हैं। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, ऑल्सो वेल दैट इंस वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायल्स एंड क्रेसिडा are the plays which are considered as comedies as they end happily, but the general tone is marked with a note of tragedy and somberness. These plays fall in the group of, किस में आएगा? जब यहाँ पे somber play के रूप में भी बहुत अच्छे दिया जाएगा। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? नॉर्थ का ट्रांसलेशन बहुत अच्छे। The style is notable and certainly adequate, and with the ease of the master, the author thoroughly subdues the matter to his will. No more fitting conclusions reach ample and graciously dignified could be found to round off the work of our greatest literary genius than these plays of रिकॉन्सिलेशन। ध्यान रखिएगा, रिकॉन्सिलेशन और फॉरगिवनेस इनके लास्ट के जो वर्क आते हैं उसमें देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या होना चाहिए? लास्ट प्ले रोमांसेस। बहुत अच्छे, ये जितनी, बस इतना ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे ही ये सारे क्वालिटीज लास्ट के वर्क में ही इनको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज अ कंटिन्यूअली washing dissolubly fabrics of other poets passes without injury by the adamant of Shakespeare. This is the remark of Samuel Johnson about Shakespeare in, कौन सा इनका है? प्रोफेसर शेक्सपियर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Who called Shakespeare Malleolus Shakespeare? तो कौन बोलते हैं? थॉमस पेबल। बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, If we wish to know the force of human genius, so we should read Shakespeare. If we wish to see the insignificance of human learning, we may study his commentators. Who said this remark? किसने बोला है? चार्ल्स लैम्ब ने बोला है। नेक्स्ट आता है, द पैसेजेस ऑफ शेक्सपियर दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर कोटेड अंटिल विद इन दिस सेंचुरी। एक मिनट जी, ये 28 देखना, 28 देखना। हाँ, 28 देख लीजिए। पढ़ना इसको दोबारा से। क्या इसमें भी अरोरा में कुछ डिफरेंट आया है क्या आंसर आप लोग को? दिया है मैम, हैजलिट दिया है। चलिए इसको भी हम, ठीक है, इसको भी हम ऑथेंटिकेट करके आप लोग को देख के बताते हैं, ठीक है ना। ओके, 29 देख लेते हैं, द पैसेजेस ऑफ शेक्सपियर दैट बी मोस्ट प्राइज वर नेवर कोटेड अंटिल विद इन दिस सेंचुरी। हु रोट इट? कौन लिखता है ये? इमर्सन। जहां पर भी आप लोग को डिफरेंट आंसर आ रहे हैं बताते चलिए। इसको नेक्स्ट जो क्लास कल आएगा, पहले हम लोग आंसर को बताएंगे कि कौन सा सही है, उसके बाद फिर हम लोग नया करेंगे, ठीक है। he breathed upon dead bodies and brought them into life, nor subsequent centuries could hit the orbit and some of Shakespeare wit. Who said? कौन कहता है? Yes, इमर्सन ही कहते हैं। ऑप्शन We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account. Whose remark it? किसका रिमार्क है ये? T.S. Eliot का। बहुत अच्छे। The remarkable thing about Shakespeare is that he is really very good, in spite of all the people who say he is very good. Whose quote is it? किसका quote है ये? बहुत अच्छे, रॉबर्ट ग्रेव्स का है। ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। Hamlet's experience simply could not have happened to a plumber. कौन कहता है ये? जी.बी. शॉ कहते हैं।
हाँ जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। Okay, who wrote the following lines in a prologue to the Tempest or the Enchanted Island? But Shakespeare magic could not copied by within that circle to non-dust work. But yes, hit यहाँ पे किसने कहा है ये? Dryden ने। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं। If I say that Shakespeare is the greatest of intellect, I have said all concerning him, but there is more in Shakespeare intellect than we have yet seen. It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware. Who said? कौन कहता है? Carlyle. बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है स्कोर नोट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड मेडल्स ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स। वेल नोन है, बहुत फेमस लाइन है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। कौन बोलता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत अच्छे। Hoity toity, a street to explore. Your house is the exception. With the same key, Shakespeare unlocked. देखिए सिमिलर आ रहा है, लेकिन इससे ध्यान रखिएगा, हाउस से, hoity toity से। Unlocked his heart one more. Did Shakespeare? If so, the less Shakespeare he. Who wrote this line? ये कौन लिखता है? बहुत अच्छी। इनका वर्क आता है हाउस ना, इसी में ये लाइन उन्होंने डिपिक्ट किया है। विच इन द फिल्म इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर, सॉरी हेमलेट। तो हेमलेट का हैदर। बहुत अच्छे। मकबूल, मकबूल किस पे है बेस्ट? मैकबेथ। मैकबेथ पर। और ओमकारा पे बेस्ट? ओथेलो। Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Comprehensive soul किसने कहा है? ड्राइडन ने। यस। ओथेलो इज फेमस फॉर क्रेडुलिटी। उसकी जो सहज विश्वासीपना था ना, उसी से वो मात खा गया। एम्बिशन किसके अंदर होता है? मैकबेथ। बहुत अच्छे। फिलोसफिकल कौन होता है? हेमलेट होता है। बहुत अच्छे। Lear is known for simplicity, Brutus for nobility, Antonio for friendship, Iago for villainy, Miranda and Perdita for beauty, Imogen for fidelity, Desdemona for devotion, Lady Macbeth for fairiness, Beatrice for biting, sarcasm and Portia किसके लिए फेमस थी? इंटेलेक्चुअलिटी देखने को मिलता है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 44. Which character is the meddlesome old bore in Hamlet? तो देखिए ओल्ड की बात की गई है, इसमें कौन आएगा? पोलोनियस आएगा। बहुत अच्छे। यस। Of comfort, no man speak. Let talk of graves of worms and epitaphs make dust or paper, and with rain eyes write sorrow on the bosom of the earth. Who speak this line? कौन बोलता है ये? किंग रिचर्ड। बहुत अच्छी। किंग रिचर्ड इन रिचर्ड सेकंड में। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। All lectures on Shakespeare comedies tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage. Who wrote it? कौन लिखता है? जी गॉर्डन। हाँ, जॉर्ज गॉर्डन। बहुत अच्छे। From Cleopatra to Miranda, he is equal at home and has the whole range of femininity at his command. क्या हो जाएगा? जी गॉर्डन, जॉर्ज गॉर्डन। ऑप्शन सी। बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट। हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर? किसका रिमार्क होता है? सैमुअल जॉनसन का, डॉक्टर जॉनसन का। यस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्या है? एम्फिट्रियन मैनेकी टू कॉमेडीज बाय प्लेटोस। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। यस, द सोर्स ऑफ मेजर फॉर मेजर। क्या है इनका सोर्स? प्रोमस एंड क्रैसेंडा, अ प्ले बाय द इंग्लिश ऑथर जॉर्ज वेटस्टोन। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। हमारी तरफ से। हाँ जी बताएं। एक क्वेश्चन छूट गया। कौन सा छूटा बताइए? 49 देखना। 49 देखिए, क्या छूटा है क्या? कोई और बताए? नहीं मैम, नहीं छूटा। थैंक यू। और आगे के सेशन के लिए स्पेशल इनवाइट करेंगे।
Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome everyone. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। स्क्रीन हमारी विजुअल हो गई। Yes, sir. देखिए जो क्वेश्चन अभी 2 पे डाउट आया है, डाउट नहीं है, उनको आप क्लियर कर लीजिए, उसमें जान ही होगा क्योंकि ये मिलता है बुक में, इसको भी माना गया है। और वहाँ पर जो है उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये कि जो ये वीक हैं और संत हैं वही वीक होंगे, जो संत हैं वही वीक होंगे, तो इसलिए जो है उसको मान लिया गया है 6 को, लेकिन जो है वहाँ पर जॉन ही सही होगा। समझ रहे हैं? उसको हाँ, जॉन सर। ही, यस सर, यस। उसको जान मानिएगा। और दूसरा एक अभी क्वेश्चन और आया था हैजलिट वो वाला, जिसमें यस सर, लैम्ब वो माना हजलिट है, हैजलिट है, वो वो हैजलिट ही हजलिट सही है। होगा। यस सर। एक्चुअली जो है टाइप करने में अगर इधर से उधर कुछ हो गई है तो हम लोग क्योंकि ओरिजिनल बुक से कर रहे हैं, अगर इधर से उधर कुछ मैच हो जाता है तो इसीलिए हम लोग लाइव एक्सप्लेनेशन पे हैं ताकि चीज़ें गलत कोई न जाने पाए, है ना? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। इसमें हैजलिट होगा, इसमें हैजलिट होगा, हैजलिट। हाँ जी, हैजलिट। ठीक है सर, थैंक यू। सोर्स ऑफ रोमियो जूलियट क्या होगा? Option A, Romeo and Juliet. रोमियो एंड जूलियट। सोर्स ऑफ किंग लियर? Chronicles by क्रॉनिकल्स Chronicles और by आर्केडिया भी, and Arcadia by Sir सिडनी Philip का आर्केडिया। सोर्स ऑफ मैकबेथ क्या जानते हो? क्रॉनिकल्स बाय मैकबेथ। कल सी होगा सर। पेरिकल्स का सोर्स Option A, यही story होगा, स्टोरी ऑफ कन्फेसियो अमेंटिस, ए कलेक्शन टेल्स is told by retold by the John. English Poet John Gower। poet John Gower। ये ऑप्शन। सोर्स ऑफ हेनरी एर्थ का क्या होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल प्ले है ये? Option C, ऑप्शन सी, क्रॉनिकल्स बाय right after all. द न्यू शेक्सपियर लाइफ इन शेक्सपियर्स इंग्लैंड। लिंक जो है पब्लिक ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, टाइम हो गया ना 45। जस्ट वेट। क्या होगा इसमें? चैप्टर देख रहे थे हम लोग, न्यू शेक्सपियर लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड बाय एलिजाबेथ शेक्सपियर, द एसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून ऑफ फाल्स्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हेमलेट, शेक्सपियर हैप्पी कॉमेडीज आर द वर्क। भाई किसके द्वारा लिखे गए हैं? Wilson, J. डावर Double विल्सन होंगे सर। विल्सन। यस। जो डावर who is known for the history of King Lear, an adaptation of Shakespeare King Lear. He omitted the fool and ended the play with the marriage of Cordelia the Thirger. कौन है? महान टेट। ठीक है। यस सर। The story of Othello is set in Venice. Venice.
Elsner in Denmark appears in Hamlet. Regan, Conrill, Cordelia are the daughter of Englia. Glare. who wrote How Many Children Had Lady Macbeth essay, an Elsie essay, Knight. theory Lionel of practice of Charles Shakespeare criticism. 89. कौन है? एल्सी नाइट दिया. Some Shakespearean themes and an approach to Hamlet is from the pen of Yes, Lionel Knights. Charles Elsie Knights. Knights. ये भी जो एल्सी नाइट. Yes, sir. क्या है? Shakespearean themes. The theatre was built by Shakespeare Acting Company, the Lord Chamberlain Man in 1599. It was a round wooden structure with balconies for the gentry. It burned down on 29 June 1613. Date ध्यान रखिएगा. What is the name of this theatre? कौन है? Globe. ग्लोब थिएटर. जी ग्रुप में सेंड कर दें सबको. ओके सर. The Lord Chamberlain Man also built a theatre in 1608. It was a अच्छा इसमें लगाना बोल रहे हैं theatre. Lord Chamberlain Man also built a theatre in 1608. It was a small theatre which could adjust 700 people. It was used in winter when the use of the open air globe was not practically possible. What is the name of this theatre? Paris Theatre. कौन है? Option C, Blackfriars. Blackfriars. T.S. Eliot wrote Hamlet and his problem. It's appear in the Sacred Wood. He used the concept of objective correlative. He considered Hamlet as artistic failure. He is a famous Hindi writer. He translated Shakespeare Merchant of Venice. It is known as the Durlabh Bandhu, invaluable friend. Who is this famous Hindi writer? Bhartendu Harishchandra. Ben Jonson writes Soul of the Age, The Applause Delights, The Wonder of Our Stage. He writes about किसके बारे में लिख रहे हैं? तो सर शेक्सपियर के बारे में. शेक्सपियर के विषय में. Who has taken these lines? Thou hast nor youth nor age, but as it were an after dinner sleep, dreaming on both form, measure for measure, as the epigraph for his poem Cheronson. T.S. Eliot. T.S. Eliot. Who called Shakespeare my Shakespeare and asked him to rise as he will lost he by Chaucer or Spenser? Ben Jonson. Ben Jonson इसकी बड़ी तारीफ करेंगे. Who called Shakespeare sweet swan of Avon? Ben Jonson. Ben Jonson. Ben Jonson. Who called Shakespeare a drunken savage with some imaginations? Voltaire. 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 Who remarked, is this are the commentators on Hamlet really mad or only pretending to be? पागल है या फिर पागल होने का दिखावा करते हैं? कौन है कहने वाले? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Who has written a story titled The Portrait of Mr. W.H.
कौन है ये? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ही है सर। ओके। ऑस्कर वाइल्ड। Whose remark is this? When I read Shakespeare. D.H. Lawrence. D.H. लॉरेंस। इस तरह से हम 74 थे क्वेश्चन आज के टेस्ट में, और कल जो रेस्ट है शायद 374 कुछ है। कितने हैं क्वेश्चन टोटल? सर 374। 374 मतलब कल 100 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे और शेक्सपियर कल कंप्लीट हो जाएगा। मे भी पॉसिबल कि कल जो है ग्रामर पोर्शन भी हम जो है आप लोगों को दें। ये जो क्वेश्चंस है इस पे रहेंगे ना, क्योंकि बुक तो नहीं है मेरे पास, अगर दोबारा पढ़ना हो वैसे तो। सर इसमें क्वेश्चन मेरी बुक में 450 दे रखे हैं, 451 क्वेश्चन है। सर जो आपने क्वेश्चन 451 ये एग्जामिक्स पे दे रहे हैं, ये एग्जाम तक रहेंगे या हटा मतलब हट जाएंगे? फिलहाल तो भी हैं, बाद में कुछ बताया जाएगा। अभी जितने दिन की वैलिडिटी है, जितने दिन चलेगी ये टेस्ट सीरीज उतने दिन रहेंगे, बाकी इसके बाद हम बताएंगे। जो साथी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए कुछ हम विकल्प ढूंढेंगे। ठीक है, डोंट वरी, तैयारी करते रहिए। आप सब लोगों के लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं, चुरा के उनको रख के कुछ मतलब उसका हम निकाल नहीं पाएंगे, कहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसकी वैलिडिटी है वो जब तक के टेस्ट सीरीज चल रही है तब तक के ही है। बाद में हम इच्छुक साथियों के विषय में अलग से कुछ हम विचार करेंगे, उनको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सेशन की तरफ, जो कि हमारा 25 क्वेश्चंस मिसलेनियस के।